Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that we are doing chapter 19 of your EVS textbook, and the name of the chapter is Map and Monuments of India. In this series, we have completed the discussion about various states, and in the previous video we have completed Meghalaya till Meghalaya. We are discussing the states in alphabetical order until now. We have completed till Meghalaya. So far we have completed Meghalaya, and in today's video we'll be discussing two more states, that is Odisha and Punjab. Okay, we'll discuss Odisha first and then we will discuss Punjab. Children, we are discussing only basic informations about states. We are not going into detail, but at least name of the rivers, the traditional food of a particular state, traditional dress, their state animal, state bird, state flower, that things we are discussing, along with the tourist places and art and craft of that particular state. So let's start with Odisha now. Children, capital of Odisha is Bhubaneswar. 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 Capital of Odisha is Bhubaneswar. Okay. Now talking about the language. Which language is spoken in Odisha? Oriya. Hindi में हम उसको बोलते हैं Oriya, and in English it is called Oriya. So the people of Odisha, they speak Oriya. O-R-I-Y-A. O-R-I-Y-A. The language which is spoken in Odisha is Oriya. Then a river. Children, many rivers flow through Odisha. Odisha is on the coastal area. It is a coastal area on the western side, on the eastern side of India. Odisha is on the eastern coast of India, and many rivers flows through this state, and the rivers are Mahanadi. Okay. Then there is Baitarni. Baitarni is also a river. B-A-I-T-A-R-N-I. Baitarni river is also there. Then Rushikulya is also there. R-U-S-H-I-K-U-L-Y-A. These are the names of the rivers. Okay. Then Brahmini is also there, Sakri is also there, लेकिन हम दो तीन का ही नाम लिखेंगे. If you remember at least one, Mahanadi, Baitarni, then also it's okay. Mahanadi, Baitarni and Rushikulya, these are the rivers that flow through Odisha. Many other rivers are also there, as I told you, but remember only one or two names. Okay? Then dance. Children, the famous dance of Odisha is a classical dance form which is called Odissi. उसको बोलते हैं Odissi. Odissi dance यहाँ का बहुत famous dance है, classical dance है, but वो तो classical dance है. उसके अलावा भी यहाँ पे कई tribal dance होते हैं, folk dances भी हैं, और भी कई folk dance हैं, और भी कई tribal dance है. But since we are talking about particular dance form, that's why I am writing only Odissi. Odissi is very famous dance form. It's a classical dance. Then
फॉरेस्ट की बात करेंगे यहाँ पर। बहुत सारे यहाँ भी कई नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, लेकिन मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी चिलिका के बारे में। इसलिए क्योंकि चिलिका जो लेक है, चिलिका जो सेंचुरी है, चिलिका लेक सेंचुरी, चिलिका लेक जो सेंचुरी है, वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब दूसरे कंट्रीज से बर्ड्स यहाँ आते हैं चिलिका लेक में, एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, विंटर्स में, एंड देन आफ्टर द सीजन गेट्स ओवर दे गो बैक टू देयर कंट्री। चिलिका लेक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है, जो दूसरे कंट्रीज से बर्ड्स आती हैं यहाँ पर, उनके लिए फेमस है। तो चिलिका लेक सेंचुरी ये बहुत फेमस लेक है, इसलिए बोल रहे हैं CHILIKA, चिलिका लेक सेंचुरी। वैसे सिमलोपाई नेशनल पार्क भी है, फिर और भी नेशनल पार्क है, लेकिन मैं सिर्फ चिलिका को मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है और ये उड़ीसा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, चिलिका लेक सेंचुरी। जो लोग उड़ीसा घूमने जाते हैं वो चिलिका लेक जरूर वो देखना चाहते हैं। देन टॉकिंग अबाउट ड्रेस, सिंपल वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस बिल्कुल सिंपल है, दैट इज साड़ी। लेडीज जो है वो साड़ी पहनती हैं और जो मेन है आदमी लोग हैं वो पहनते हैं धोती कुर्ता। ओके, सो बिल्कुल सिंपल ड्रेस है वहां का, ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ी फॉर वुमेन एंड धोती कुर्ता फॉर मेन। फेस्टिवल, हैव यू हर्ड अबाउट रथ यात्रा? आपने कभी ये नाम सुना है, रथ यात्रा? आपके वाराणसी में भी रथ यात्रा निकलती है, लेकिन जो उड़ीसा का रथ यात्रा है दैट इज वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में फेमस है यहाँ का रथ यात्रा फेस्टिवल। ये रथ यात्रा फेस्टिवल, पुरी नाम का एक सिटी है उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी बोलते हैं उसको, या सिंपली पुरी बोलते हैं। और ये जो प्लेस है ये एक हिंदू जो लोग हैं, जो हिंदू रिलीजन है उसका ये एक फेमस पिलग्रिमेज साइट भी है, एक फेमस धाम भी है। 4 धाम बोलते हैं ना, हिंदू धर्म में जो 4 धाम होते हैं उसमें से ये एक धाम है, जगन्नाथपुरी बोलते हैं। जगन्नाथ इज लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ जो है भगवान कृष्ण का ही, लॉर्ड कृष्ण का ही एक नाम है। लॉर्ड कृष्ण जो है उनको जगन्नाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में पुरी नाम का जो सिटी है उसमें जगन्नाथ टेम्पल है और उस जगन्नाथ टेम्पल से ही रथ यात्रा वहां पे प्रोसेशन निकाला जाता है रथ यात्रा का। और माना जाता है ये रथ यात्रा में जो जगन्नाथ जी हैं, उनके भाई बलभद्र जी और उनके सिस्टर जो है सुभद्रा, ये लोग अपने रिलेटिव या मौसी या किसी के घर जाते हैं रथ के थ्रू। और ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है यहाँ का, नॉट ओनली ऑफ उड़ीसा बट ऑफ वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में बहुत फेमस है फेस्टिवल, दैट इज रथ यात्रा फेस्टिवल। और लोग दूर दूर से रथ यात्रा के टाइम पर, जुलाई के मंथ में शायद होता है ये, तो दूर दूर से लोग रथ यात्रा फेस्टिवल के टाइम पर उड़ीसा में जाते हैं, पुरी जाते हैं टू अटेंड दिस फेस्टिवल कॉल्ड रथ यात्रा। तो इसको बोलते हैं RATH, रथ यात्रा। इस रथ मतलब यहाँ पे 3 रथ होते हैं। रथ मतलब चैरियट जिसको बोलते हो इंग्लिश में। तो 3 चैरियट्स होते हैं जो वुडन होते हैं, लकड़ी के बनाए जाते हैं, और उनमें भगवान जो जगन्नाथ हैं, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के आइडल्स रखे जाते हैं। वो आइडल्स भी वुडन होते हैं, लकड़ी के ही होते हैं। आपने अगर इमेज देखा होगा, पिक्चर देखा होगा जगन्नाथ जी का, तो ऐसे गोल गोल आंखों वाले उनका इमेज है, पिक्चर है। तो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के ये रथ होता है, चैरियट होता है, जिससे रिलेटेड ये फेस्टिवल है रथ यात्रा।
देन यहाँ पर एक राजा पर्व भी होता है। फिर यहाँ पे डोल यात्रा भी होता है, एक डोल, वो भी यात्रा ही है, उसको यात्रा बोलते हैं। देन पटुआ यात्रा भी होता है, सारे यात्रा से ही रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट आपको रथ यात्रा ही याद रखना है, जो यहाँ का सबसे फेमस है। देन लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी क्या है यहाँ की? अगेन द कैपिटल ऑफ ओडिशा, कैपिटल ऑफ ओडिशा दैट इज भुवनेश्वर इज द लार्जेस्ट सिटी। विशाखापट्टनम भी है, लेकिन लार्जेस्ट सिटी भुवनेश्वर ही है। लार्जेस्ट सिटी जो है वो भुवनेश्वर है, ठीक है। भुवनेश्वर इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ उड़ीसा। सो लार्जेस्ट सिटी जो है वो कैपिटल जो है उड़ीसा की, वही लार्जेस्ट सिटी है यहाँ का। अब बात करते हैं स्टेट एनिमल की। उड़ीसा का स्टेट एनिमल एक तरह का डियर होता है, उसको सांभर बोलते हैं। वो साउथ इंडियन खाने वाला इडली डोसा सांभर वाला नहीं, ये एक डियर होता है, सांभर बोलते हैं, सांभर। वो एक डियर होता है, सांभर डियर बोलते हैं, SAMBER, सांभर, ये डियर होता है, ठीक है। ये यहाँ का स्टेट एनिमल है, ओके। स्टेट बर्ड क्या है? स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। इंडियन रोलर यहाँ का स्टेट बर्ड है, और सांबर जो है वो यहाँ का स्टेट एनिमल है। ये हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी थोड़ा सा और आपको मैं उड़ीसा के बारे में बता रही हूँ। लेट मी रब दिस नाउ, ओके। चलिए अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फ्लावर की बात करते हैं। स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर है अशोक। अशोक का ट्री भी होता है और ये एक फ्लावर का नाम भी होता है अशोक का, तो वो यहाँ का स्टेट फ्लावर है अशोक। और स्टेट ट्री है तो यहाँ एक तो पीपल है, पीपल यहाँ का स्टेट ट्री भी माना जाता है। और एक ही कूलर करके एक ट्री होता है, कूलर फिग बोलते हैं, वो भी यहाँ का स्टेट ट्री करते। फिग मतलब अंजीर, तो वो भी यहाँ का स्टेट ट्री माना जाता है। देन टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सा है यहाँ पे? टूरिस्ट प्लेस उड़ीसा में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। सबसे पहले तो सन टेम्पल है, सन टेम्पल कोणार्क जो है, KONARK, वो यहाँ का बहुत ही फेमस प्लेस है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। देन जैसा मैंने आपको बताया पुरी, पुरी जो है वो हिंदुओं के 4 धाम में से एक धाम भी है पुरी, जिसे जगन्नाथपुरी भी कहते हैं या सिंपली पुरी भी कहते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ पुरी आते हैं जगन्नाथ टेम्पल में लॉर्ड जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। और इस टेम्पल से रिलेटेड कई सारी स्टोरीज भी इससे रिलेटेड है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द स्टोरीज, हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको बेसिक 2 चीजें बता रही हूँ। तो
और यहाँ पर एक जो चिलिका लेक जो मैंने बताया था वो तो है ही है। चिलिका लेक ये देखने के लिए भी बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। सन टेम्पल है कोणार्क का, पुरी है, चिलिका लेक है, ये सब इम्पोर्टेंट प्लेसेस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक तप्ता पानी करके भी यहाँ पर जगह है, तप्ता पानी बोलते हैं उसको। फिर एक लिंगराजा टेम्पल भी यहाँ पर फेमस है, लिंगराजा टेम्पल। तप्ता पानी मैं वो नहीं बता रही हूँ, बस ये सब ध्यान रखें। ये हो गया चिलिका लेक, लिंगराजा टेम्पल, सन टेम्पल कोणार्क एंड पुरी, ये है यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस। अब आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट तो ज्यादा नहीं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर एक ना पत्ता चित्र करके आर्ट होता है, एक लीफ के ऊपर पेंटिंग होती है, लीफ पेंटिंग होती है, उसको पत्ता चित्र बोलते हैं, जो बहुत फेमस है यहाँ का। PATTA पत्ता, CHITRE पत्ता चित्र, मतलब पाम लीफ होता है, उससे उसके ऊपर पेंटिंग होती है, इसको बोलते हैं पत्ता चित्र। पत्ता ये डबल T है, पत्ता चित्र, वो फेमस है। उसके अलावा जो बैम्बू होता है ना, उससे कॉम्ब, कंघी बनाए जाते हैं, इंट्रिकेट कॉम्ब बनाए जाते हैं, दोनों बोथ साइडेड वाले जो कॉम्ब है ना, वो भी यहाँ पर बहुत फेमस है। INTRI इंट्रिकेट कॉम्ब, जो कंघी होती है, मेड यूजिंग बैम्बू, बैम्बू। ठीक है, इंट्रिकेट कॉम्ब यूजिंग बैम्बू। देन लाख, एक पेड़ में से निकलता है, पेड़ से में मिलता है लाख, और फैब्रिक यूज होता है। फिर एक जगह है यहाँ पे संबलपुर, तो संबलपुरी डिजाइन की साड़ीज बहुत फेमस है। संबलपुरी बोलते हैं, डबल संबलपुरी जो प्रिंट है उसके संबलपुरी प्रिंट बहुत फेमस, संबलपुरी साड़ियां बहुत फेमस हैं। तो ये सारी चीजें जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की, ये है उड़ीसा का आर्ट एंड क्राफ्ट में आता है। तो स्टेट फ्लावर अशोक, स्टेट ट्री पीपल एंड कूलर। फिर टूरिस्ट प्लेस हो गया सन टेम्पल, कोणार्क का, पुरी, चिलिका लेक, तप्ता पानी, लिंगराज टेम्पल। तप्ता पानी मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको ओरली बता रही हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट में पत्ता चित्र है, कॉम्ब है यूजिंग बैम्बू एंड संबलपुरी क्राफ्ट। तो हमारा ये थी कुछ इंफॉर्मेशन उड़ीसा के बारे में। आई होप आप इतना सफिशिएंट है। और अब हम बात करेंगे पंजाब की। विल टॉक अबाउट नाउ स्टेट ऑफ पंजाब। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पंजाब। Punjab and its capital is Chandigarh. Capital of Punjab is Chandigarh. Children, Chandigarh is also capital of Haryana. Chandigarh is also a union territory. Chandigarh is a union territory. Chandigarh is capital of Haryana and Chandigarh is capital of Punjab. So this city, Chandigarh, is capital of 2 states. Now, what is the meaning of Punjab? Children, पंच का मतलब होता है 5. पंच मतलब 5. आब का मतलब होता है रिवर. 5 रिवर्स. पहले पंजाब से 5 रिवर्स फ्लो करती थी, इसीलिए इसको पंजाब इसका नाम रखा. पंज मतलब 5,
आब मतलब रिवर, पंजाब। लेकिन अब यहाँ पर 3 रिवर्स ही हैं, ठीक है। ये इट इज मेड द वर्ड पंजाब is made of 2 words, Panj, okay, Panj, which means five, and Aab. Aab means water. Aab का मतलब होता है water. Land of 5 rivers. Land of 5 rivers. Okay. पंजाब का मतलब है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। लेकिन अभी यहाँ पर 3 रिवर्स हैं, बाकी पाकिस्तान में चलेंगे, सतलज, ब्यास और रावी। लैंग्वेज यहाँ कौन सी बोली जाती है? एवरीबडी नोज। पंजाब में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? पंजाबी। यस, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। रिवर्स कौन से हैं यहाँ पर? रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू पंजाब आर सतलज, ब्यास एंड रावी। ओके, सतलज, ब्यास एंड रावी। देन डांस। Do you know dance of Punjab, folk dance of Punjab? I'm sure you must have heard about Bhangra. Yes, Bhangra is the famous folk dance of Punjab. Bhangra basically जेंट्स लोग करते हैं, मेल करते हैं। लेडीज भी एक डांस करती हैं। वो लोग डांस, जो लोग नृत्य जिसको बोलते हैं, फोक डांस जिसको बोलते हैं, और उसको बोलते हैं गिद्दा। गिद्दा में वो सिंगिंग भी करती हैं और डांसिंग भी करती हैं, मतलब गाते भी हैं और डांस भी करते हैं साथ साथ में। खुद ही गाते हैं और फिर साथ में डांस करते हैं, दैट इज कॉल्ड गिद्दा। तो मेन डांस है इनका भांगड़ा, एंड लेडीज करती हैं गिद्दा, जिसमें कि सिंगिंग और डांसिंग एक साथ होता है, ठीक है। एंड भांगड़ा बहुत ही विगरस डांस होता है, बहुत एनर्जी के साथ डांस करते हैं पंजाबी लोग भांगड़ा। और जिसको नहीं भी डांस आता ना, वो भी कूदने लग सकता है, इतना एनर्जेटिक डांस होता है ये। देन फेस्टिवल। यहाँ का फेमस फेस्टिवल है लोहड़ी, बैसाखी एंड गुरु पर्व। लोहड़ी, बैसाखी एंड गुरु पर्व। लोहड़ी जो है वो मकर संक्रांत के टाइम आती है, और बैसाखी है, और गुरु पर्व जो है वो मेन फेस्टिवल है, जो गुरु नानक देव जी का बर्थडे, जो 10 गुरुज हैं पंजाबी लोगों के, जो 10 गुरुज ये लोग जो मानते हैं, उनसे रिलेटेड है गुरु पर्व। गुरु नानक देव जी के बर्थडे से ये रिलेटेड है, तो ये उनका मेजर फेस्टिवल है। लोहड़ी, बैसाखी एंड गुरु पर्व, दीज आर द मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट festivals of Punjab. Then dress. लेडीज पहनती हैं सलवार एंड कुर्ता, पटियाला सलवार बोलते हैं या सिर्फ सलवार बोलते हैं, SALWAR सलवार एंड कुर्ता। और जो मेल हैं वो लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं। कुर्ता PAYJAMA, कुर्ता पैजामा या फिर लुंगी LUNGI,
लुंगी भी, कुर्ता लुंगी भी पहनते हैं या कुर्ता पायजामा भी पहनते हैं यहाँ के लोग। फिर फूड, पंजाब के खाना बहुत ही फेमस है। बहुत सारे खाने पीने की चीजें यहाँ की फेमस है, लेकिन जो यहाँ का स्टेपल जो फूड है वो है मक्की की रोटी और सरसों का साग, जो सबसे ज्यादा फेमस है। वैसे तो छोले भटूरे पंजाब का बहुत फेमस है, छोले भटूरे, कुलचा बहुत फेमस है, लेकिन जो ट्रेडिशनल खाने की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो खाना, वो फेमस खाना क्या है, मक्की की रोटी और सरसों का साग, ये बहुत फेमस है। यहाँ के लोग बटर बहुत खाते हैं। यहाँ के लोग जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लस्सी, छाछ, वो बहुत ज्यादा खाने पीने में यूज करते हैं। ठीक है, तो फूड में हम लिख देते हैं मक्की, MAKKI, मक्की दी रोटी और सरसों, SARSON, सरसों दा साग। सरसों दा साग, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, ये फेमस है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ के लोग बहुत यूज करते हैं, लाइक बटर मिल्क, छाछ इसको बोलते हैं, लस्सी एंड ऑल। ये यहाँ के लोग अपने खाने पीने में मैक्सिमम ये यूज करते हैं। तो ये हमारा बेसिक, और इसमें हम ऐड करेंगे, चलिए तो और जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं टूरिस्ट प्लेस की। उसमें है गोल्डन टेम्पल, जो यहाँ का सबसे फेमस है। गोल्डन टेम्पल, जिसको हरमंदिर साहिब भी बोलते हैं, वो पंजाब का बहुत फेमस प्लेस है। उसके अलावा जलियांवाला बाग, JALLIANWALA, जलियांवाला बाग, इसका जो है हमारे जो फ्रीडम का जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है उससे रिलेटेड है जलियांवाला बाग। यहाँ पे बहुत से लोगों को ब्रिटिश लोगों ने बिना कसूर के इनको गोलियों से भून दिया था। ये जलियांवाला बाग का हिस्टोरिकल वो इम्पोर्टेंस है। एंड देन यहाँ पर रॉक गार्डन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन फेमस है, रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, एक लीजर वैली भी यहाँ का फेमस है, लीजर वैली। गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, रॉक गार्डन, लीजर वैली, ये सब यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। देन आर्ट एंड क्राफ्ट, यहाँ पे एक फुलकारी का काम होता है, फुलकारी के दुपट्टे मिलते हैं। फुलकारी इज एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी ऑफ फ्लावर, दुपट्टा होता है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जिसको बोलते हैं फुलकारी वर्क, मतलब ये एम्ब्रॉयडरी होती है, फुलकारी इसको बोलते हैं, PHULKARI, मतलब फ्लावर एम्ब्रॉयडरी होती है। जो फ्लावर एम्ब्रॉयडरी होती है उसको पंजाबी में फुलकारी बोलते हैं। उसके बाद लकड़ी की चीजें बनाई जाती हैं यहाँ पर, वुड इनले, ये भी यहाँ का फेमस है। अच्छा, एक और बात आपको मैं बता दूं, जो पंजाब जो है इट इज नोन फॉर द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे फर्टाइल लैंड जो पंजाब में है, इसीलिए पंजाब को ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब हमारा देश का मैक्सिमम जो वीट प्रोडक्शन है वो पंजाब में होता है। गेहूं के यहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है, इसको ग्रेनरी ऑफ आवर कंट्री भी कहा जाता है। सबसे फर्टाइल लैंड है हमारा, अगर फर्टाइल स्टेट अगर कोई है तो वो है पंजाब। ठीक, और एनिमल क्या है यहाँ का, स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, काला हिरन जो है वो ब्लैक बक। स्टेट बर्ड है बाज, स्टेट
बर्ड। एक हॉक होता है जिसको हम बाज बोलते हैं हिंदी में, HAWK, हॉक। बाज दिखने में थोड़ा थोड़ा ईगल जैसा होता है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं बाज और इंग्लिश में बोलते हैं हॉक। ये यहाँ का स्टेट बर्ड है। फ्लावर बहुत सिंपल लेकिन बहुत अच्छा सा है, वो ग्लैडियोलस, वो है GLADIOLUS। ग्लैडियोलस जो है, स्टिक वाला जो फ्लावर होता है वो यहाँ का स्टेट फ्लावर है। स्टेट ट्री है यहाँ का सीसम। शीशम जो है यहाँ का स्टेट ट्री है, ठीक है। सीसम स्टेट ट्री है, फ्लावर ग्लैडियोलस है, स्टेट बर्ड बाज है, स्टेट एनिमल ब्लैक बक है। और आर्ट एंड क्राफ्ट में वुड का कार्विंग वाला, वुड पे कार्विंग का सामान है, प्लस फुलकारी है। एम्ब्रॉयडरी के लिए पंजाब बहुत फेमस है। नॉट ओनली फुलकारी बट अदर टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी इज ऑल्सो डन। ड्रेस मटेरियल के ऊपर वुलन क्लोथ्स के लिए बहुत फेमस है। लुधियाना जो है, यहाँ का जो सिटी है लुधियाना, वो वुलन कपड़ों के लिए, वुलन क्लोथ्स के लिए भी फेमस है। तो ये हमने बात की आज उड़ीसा और पंजाब की। 2 स्टेट्स आज हमने डिस्कस किए और आज का यहीं पे ओवर करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।